Hello dear students, Assalamu alaikum. Again you are with Babul Ali Khorejo and you are learning the English with Babul Ali Khorejo. Dear students, I am going to tell you one important thing that whatever the videos I have sent you on your WhatsApp group, then you must save all these videos in a particular gallery. And another thing, very necessary and important task I am going to share with you that you must preserve all these videos in the notes, because when the school will reopen, these notes will help you a lot. And dear students, furthermore I want to say you that if you feel any sort of the problem while watching my videos, then you must tell me or chat me or tell me in the WhatsApp through the WhatsApp number. So class, another poem which I have brought for you is also very pleasant and amusable for you. So class, today we are going to talk about the poem. The name of that poem is Lines from an Essay on Man, which is written by the Alexander Pope. Class, this is an inspirational as well as classical as well as spiritual poem based upon the man, in which Alexander Pope tells the existence of the man and the world, as well as he furthermore define a very critical situation of the man while the presence of his existence in the world. So class, in this video I will only tell you the explanation of the poem through the textual lines and with reference to context, and I will also tell you the introduction of the poet. But class, I will not define the summary and the central idea of this poem. This is your own task. You have to make the central idea as well as the summary of this poem. So class, let's move towards our poem, and which is written by the Alexander Pope by the name the Essay on Man. So class, चलते हैं हम poem की तरफ, जैसे कि Alexander Pope, he was born in 21st February 1688. So class, let's move toward the second slide. That he was a poet and satirist. He also wrote a long narrative biography poems. क्लास, इसने बायोग्राफी वाले पोएम्स भी लिखे थे जो कि बहुत बड़े लॉन्ग थे, और ये पोएट भी था और सेटारिस्ट भी था, यानी ये सेटारिकल पोएट था. सेटारिकल पोएट का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो कि अपनी राय किसी और के राय में ऐड करे और अपनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस पोएम में ऐड करे, उसे बोलते हैं हम सेटारिस्ट. क्लास, इसने जो ये पोएम लिखी है, ही रोट अ पोएम एन एसे ऑन मैन टू शो द मैन इज एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट्स ने ये जो पोएम लिखा है जिसका नाम है एन एसे ऑन मैन, ये असल में इस बंदे को इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, इसकी मौजूदगी के बारे में बताता है कि ये किस तरह से यानी इस दुनिया में मौजूद रहता है, किस तरह से ये सर्वाइव करता है और कौन सी चीज़ें होती है जिससे ये गुप्त रहता है या जिससे ये मतलब अनअवेयर रहता है, उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहता. सो स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे हम आते हैं. ही रोट द फेमस पोएम. इसने एक मशहूर पोएम लिखा था जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक. स्टूडेंट्स, द रेप ऑफ द लॉक एक ऐसी पोएम है जो कि एक खूबसूरत लड़की के बारे में लिखी गई है. अलेक्जेंडर पोप ने इसको कुछ इस तरह से बयान किया है कि द रेप ऑफ लॉक में क्या होता है कि द रेप ऑफ लॉक का क्लास मतलब होता है ऐसी लड़की जिसकी जो चोटी है पीछे बनी हुई हो, वो भी दो हिस्सों में. क्लास, आपको पता है कि लड़कियों की चोटी जो होती है दो हिस्सों में पीछे बंधी हुई होती है, तो इस चोटी जो दो हिस्सों में चोटी बंधी हुई होती है, असल में इससे ही हम बोलते हैं द रेप ऑफ द लॉक. और लॉक हम इसे बोलते हैं जिससे औरत की पीछे चोटी बंधी हुई होती है. सो हम इसे बोलते हैं द रेप ऑफ द लॉक, इसलिए इस पोएम का नाम ये रखा गया है द रेप ऑफ द लॉक. इसमें क्लास ये होता है कि एक लड़की होती है जो कि अपनी खूबसूरती के बालों की खूबसूरती की वजह से बहुत ही बड़ी मशहूर होती है. तो क्लास, इसमें आगे जाके जिसका नाम होता है बेंडिला, और क्लास इसमें एक विलन भी होती है, एक विलन का करेक्टर भी होता है. वो लड़की आखिर में इसके बाल काट देती है और इसकी जो पूरी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है. So students, Alexander Pope was born in a Catholic family. ये कैथोलिक फैमिली इनका सरनेम है. क्लास, जो जिस फैमिली में ये पैदा होता है, उसके बाद ही सफर्ड फ्रॉम द प्रेजिडेसिस. प्रेजिडेसिस का मतलब होता है यानी तासुब. इससे बहुत बड़ा तासुब होता है. ही एजुकेटेड इन दी टाइफोर्ड. टाइफोर्ड एक इदारे का नाम है जहाँ पे ये अपनी शुरुआती तालीम हासिल करता है. तो लेट्स मूव इन अदर स्लाइड्स. क्लास, इस स्लाइड में अलेक्जेंडर पोप इस पोइम का मकसद बताना चाहते हैं कि उसने ये पोइम क्यों लिखी है. ये कुछ इस तरह से बताते हैं कि द पर्पज ऑफ एन एसे ऑन मैन, ये जो पोएम लिखा गया है एन एसे ऑन मैन, उसका मकसद ये है कि इज देन टू शिफ्ट और एनहांस द रीडर्स परसेप्शन ऑफ व्हाट इज नेचुरल और करेक्ट. परसेप्शन का क्लास मतलब होता है एहसास. इसमें ये लोगों का या बंदे का एक एहसास है
उसको जगाना चाहता है और ये प्रूव करना चाहता है क्या उसमें एहसास है या नहीं है, क्या उसमें फीलिंग्स हैं या नहीं है, क्या उसमें इमोशंस है या नहीं है। बाय डूइंग दिस वन वुड जस्टिफाई द हैपनिंग्स ऑफ लाइफ। अगर उसमें इमोशंस हैं तो वो जिंदगी का असल मकसद जस्टिफाई कर सकता है यानी समझ सकता है। एंड द वर्किंग ऑफ गॉड, और खुदा ने जो काम दिए हैं हमें करने के लिए उस पर भी अमल कर सकता है। फॉर देयर इज अ रीजन बिहाइंड ऑल थिंग्स दैट इज बियॉन्ड द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं खुदा की तरफ से जिनको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। क्लास जैसे कि भाई बंदों को अपनी किस्मत के बारे में पता नहीं है, उनको उनकी किस्मत का राज पता नहीं है, उन्हें फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा ये उन्हें पता नहीं है। तो ये सब कुछ जो है एक गिफ्ट है जो इंसान को खुदा की तरफ से दिया गया है। तो क्लास ये था पर्पस जो कि अलेक्जेंडर पोप ने हमें बताया है, अपना मकसद बताया है, अपने पोएम के लिखने की वजह बताई है, क्योंकि उसने पोएम ये किस तरह से लिखा है या क्यों लिखा है, उसका मकसद कुछ इस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने हमें बताया है। तो क्लास हम अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। We'll learn about the Alexander Pope in the slide that he was died on May 30, 1744. It means he was a poet of the 18th century. The age of the Pope ended here in 1744. It means the Pope's age may end in 18th century. So let's move another slide, students. Class, I think that you must learn the briefly introduction and in a very neat way. So I think that now it's time to move towards the lines of the poetry, which we have to read it, which we have to comprehend it in a very special way. So class, let's move towards the poem. क्लास चलते हैं हम अपनी पोएम की तरफ कि इस पोएम में अलेक्जेंडर पोप क्या कहते हैं। हेवियन फ्रॉम ऑल द क्रिएचर्स हाइड द बुक ऑफ फेट। क्लास यहाँ पे हेवियन का मतलब निकलेगा गॉड, और क्लास यहाँ पे बुक ऑफ फेट का मतलब निकलेगा किस्मत का राज। अब इसमें कहता है कि खुदा ने सारे इंसान जात से या अपनी मखलूक से किस्मत का राज छुपा के रखा है, यानी कब किसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। क्लास आगे चलते हैं। बट ऑल द पेज प्रिस्क्राइब्ड देयर प्रेजेंट स्टेट। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है क्लास फिक्स्ड, जो कुछ उनके हाल में होता है सिर्फ उन्हें वही पता होता है, बाकी फ्यूचर में क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं होता, या आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो क्लास चलते हैं हम तीसरी लाइन पे। कहता है कि फ्रॉम ब्रूड्स व्हाट मैन एंड फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो। क्लास ब्रूड्स का यहाँ पे मतलब निकलेगा एनिमल्स और स्पिरिट्स का यहाँ पे मतलब निकलेगा एंजल। यानी ये कहता है कि हमें पोइट कहता है कि खुदा ने इंसानों के राज जानवरों से भी छुपा के रखे हैं और खुदा ने फरिश्तों के राज भी इंसानों से छुपा के रखे हैं। अब कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इंसानों के राज जानवरों से कैसे छुपा के रखे हैं, जैसे जानवर कुछ भी नहीं जानता कि भाई कब इंसानों से ज़िबा करेगा, कब उसे वो सेल करेगा, कब उसे वो घास देगा, कब उसको यानी छोड़ेगा, कब उसे बांधेगा, कब उसे यानी कहीं दूर लेके जाएगा या किसी और जगह पे लेके जाएगा। यानी जानवरों को कुछ पता नहीं होता। यानी इंसानों के राज से जानवरों को खुदा ने गुप्त रखा है, और सेम तरह से ही मतलब फरिश्तों के राज से भी इंसानों को यानी बेखबर रखा है, खबरदार नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल कब कौन सा फरिश्ता कब किस वक्त आ जाए, हमारी रूह कब्ज कर जाए, या हमारे सवाब लिखे, या हमारे गुनाह लिखे, या हमारे साथ कुछ और एक्टिविटीज़ करे, या हमारे लिए कोई और काम करे, या हमारे लिए कोई और काम सरंजाम दे। यानी ये हमें कुछ पता नहीं होता कि फरिश्ते कब किस वक्त हमारे साथ क्या करेंगे या कब हमारी रूह कब से हो जाएगी। यानी फरिश्तों के राज खुदा ने इंसानों से छुपा के रखे हैं। और कहता है नीचे वाली लाइन में आर हु कुड सफर बीइंग एयर बेलो, और जो भी मखलूक है, जो भी इंसान है जो ज़मीन पे रहते हैं, उन सब से खुदा ने उनकी किस्मत का राज छुपा के रखा है। तो क्लास ये थी 4 लाइनें। अब हम चलते हैं अगली लाइन्स पे। क्लास चलते हैं अगली लाइन्स पे। कहता है कि द लैम्ब दाई रोड डोम्स टू ब्लीड टुडे। क्लास यहाँ पे लैम्ब का मतलब निकलेगा भेड़ का बच्चा, छोटा सा शीप का छोटा सा बच्चा। और दाए रूट डोम से उसकी किस्मत में क्या लिखा है, इसका मतलब ये निकलता है दाए रूट डोम से यानी उसकी किस्मत में क्या लिखा है। टू ब्लीड का मतलब होता है शहीद होना या ज़िबह होना। तो इसमें शायर कहता है कि द लैम्ब दाए रोड डोम्स टू ब्लीड टुडे। क्या उस भेड़ के बच्चे को ये पता है कि आज वो ज़िबह होने वाली है या ज़िबह होने वाला है। हेड ही दाए रीजन, क्या उसे ये पता है। वुड ही स्किप एंड प्ले, अगर ये उसे पता होता तो क्या वो खेलता, कूदता, जंप लगाता, इधर उधर जाता, क्या खेलता। प्लीज टू द लास्ट, क्या वो आखिर तक खुश रहता अगर ये से पता होता तो। ही क्राफ्स द फ्लावरी फूड, क्या वो हरा भरा घास खाता।
एंड लिक्स द हैंड जस्ट रेस्ट टू शेड इज ब्लड। क्लास लिक्स का मतलब होता है चाटना। जैसे कि हमें पता है कि भेड़ का छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने मालिक के हाथों को चाटता है जब वो उसे घास खिलाता है या घुमाने ले जाता है। तो ये कहता है कि अगर इसे पता होता कि यही हाथ इसका खून बहाने वाले हैं, यही हाथ इसको ज़िबा करने वाले हैं, तो क्या ये उन हाथों को चाटता? कभी नहीं चाटता। तो ये है क्लास जो कि किस्मत का राज, जो कि खुदा ने इंसानों के राज जानवरों से छुपा के रखे हैं। अगर इसे ये सब कुछ पता होता तो क्या ये बच्चा ऐसे करता? ना करता। क्लास चलते हैं हम अगली लाइन्स पे कि इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि ओ ब्लाइंडनेस। ओ ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कितने अनजान रहते हैं। टू द फ्यूचर, मुस्तकबिल से कितने अनजान रहते हैं। काइंडली गिवन, जो कि उन्हें यानी दिया जाता है। अब फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, वो उस फ्यूचर से कितना अनजान रहते हैं। डेट ईच में फिल द सर्किल मार्केट बाय द हेवियन। ये किस्मत का एक राज है, ये किस्मत की एक लकीर है। जिस तरह से यानी किस्मत चाहती है उस तरह से ही होता है। Who sees with equal eyes is God of all। क्लास यहाँ पे हेवियन का मतलब भी गॉड ही निकलेगा कि ये खुदा का दस्तूर है कि किस तरह चीज़ों को पूरा करता है। Who sees with equal eyes is God of all। वो खुदा जो सबको एक नज़र से रखता है, एक नज़र से देखता है, जो कि सबका खुदा है। आगे बोलता है हीरो पेरिश। पेरिश का मतलब होता है क्लास खत्म होना। आर स्पेरो फॉल। ये कहता है कि कोई बड़ा हीरो मर जाए या छोटी सी स्पेरो, छोटा सा पंछी मर जाए। एटम्स आर सिस्टम इनटू रूइन बेहल्ड। एटम्स का मतलब होता है क्लास मतलब छोटी छोटी सी तबाही, छोटी तबाही हो या बड़ी तबाही हो। एंड नाउ अ बबल बस्ट, चाहे छोटा सा नुकसान हो। एंड नाउ अ वर्ल्ड, चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी स्लाइड्स में ये कहना चाहता है कि खुदा ने लोगों को अपने फ्यूचर से कितना अनजान रखा है, और ये खुदा ही है जो कि किस्मत के राज को जानता है, और किस वक्त किसके साथ क्या करना है, किस तरह से लोगों की किस्मत चेंज करनी है, ये सिर्फ खुदा ही जानता है। ये कहता है कि खुदा को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटी तबाही हो या बड़ी तबाही हो, या कोई बड़ा आदमी मर जाए, या कोई बड़ा हीरो मर जाए, या कोई छोटा सा पंछी मर जाए, या कोई छोटा सा नुकसान हो, यानी बबल बस्ट यानी छोटा सा नुकसान हो, या पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि वो बेपरवाह है। यानी खुदा की नज़रों में सब एक जैसे हैं, उसकी नज़रों में सब एक जैसे हैं। पंछी भी एक है तो बड़ा हीरो भी एक है। यानी शायर के कहने का मतलब कुछ इस तरह का है कि वो सबको एक नज़र से देखता है। इन लाइन्स में शायर ये कहता है कि होप हम्बली देन विथ ट्रेम्बलिंग पाइन और सोर। क्लास यहाँ पे ट्रेम्बलिंग पाइन और सोर का मतलब होगा कामयाबी की तरफ उड़ना या कामयाबी की तरफ जाना। तो क्लास यहाँ पे शायर कहता है कि एक तरफ खुदा ने उनकी किस्मत का राज लोगों से छुपा के रखा है, और दूसरी तरफ खुदा ने इन्हें एक दो बड़े तोहफे दिए हैं। एक तोहफा ये है कि भाई उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। इंसानों की उम्मीदें, क्योंकि दुनिया उम्मीदों पे कायम है, कि लोगों की ये उम्मीदें होती है कि आगे जाके हमारे साथ अच्छा होगा और अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी लोग अपने फ्यूचर से खुश, प्रेजेंट से खुश नहीं होते हैं, और वो अच्छा आने की उम्मीद करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो इसमें शायर कहता है कि विथ अ वेट ग्रेट टीचर डेथ, वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर। इसमें कहता है कि खुदा ने इनको एक और भी बड़ा तोहफा दिया है, जो कि है मौत। यानी मौत से खुदा ने इनको यानी बेखबर रखा है। यानी इन्हें कुछ पता नहीं है कि इनकी मौत कब होगी। यानी ये भी खुदा की तरफ से इनके लिए एक तोहफा है कि उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी मौत कब होगी। व्हाट फ्यूचर ब्लिस, मुस्तकबिल उनके लिए क्या लाता है। ही गिव्स नॉट दी नो, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। बट गिव्स डेट होप टू बी दाई ब्लेसिंग नाउ, पर इन्हें एक अच्छी उम्मीद होती है, अच्छा होने की उम्मीद होती है कि ज़रूर इनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इन्हें एक उम्मीद होती है, होप होती है। होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन्स ब्रीस्ट, और यही उम्मीद लोगों के दिलों में होती है, लोगों के सीनों में होती है। ब्रीस्ट यानी सीना, सीने का मतलब क्लास होता है दिल, और यही उम्मीदें लोग दिलों में रख के जीते हैं कि हमारे साथ कभी ना कभी अच्छा होगा, किस्मत हमारे लिए कभी ना कभी अच्छा दिन या अच्छी चीज़ें हमारे लिए लाएगी। तो चलते हैं क्लास हम अगली स्लाइड्स पे। शायर आखिरी लाइनों में बहुत ही बड़ी बात कहता है कि मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी द ब्लेस्ड। इंसान अपने हाल से कभी भी खुश नहीं होता, और वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अपने फ्यूचर के बारे में सोच के रखता है, और वो सोचता है कि फ्यूचर में इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, या ये कुछ ना कुछ फ्यूचर में अच्छा करेगा। और लास्ट में क्लास बात हो रही है रूह की, द सोल अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम। और ये रूह भी यहाँ पे यानी इसकी जान में अंदर बेचैन रहती है अपने असली घर जाने के लिए। यानी क्लास यहाँ पे मौत की बात हो रही है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाता है तो वो कहाँ जाता है, हेवियन में जाता है। और हेवियन से जहाँ पे इस दुनिया में आया था,
अब इस दुनिया से वापस जाने की जल्दी में रहता है। नीचे कह रहा है द रेट्स एंड एक्सपेक्टेट्स इन द लाइफ टू कम, और जहां से ये पहली शुरुआती दुनिया से इस दुनिया में आया था, अब ये वही रूह जो है अपने असली घर पे जाने के लिए जल्दी करता है, और मतलब वहां पे जाने के लिए जल्द तैयार रहता है। तो यहाँ पे क्लास मौत के बारे में शायरा में बता रहा है कि लास्ट में बंदे की मौत हो जाती है और उसकी रूह वहां से चली जाती है जहां से हेवियन से उसकी रूह आ जाती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि रूह जो होती है इंसान के जिस्म में, वो भी अपने असली घर जाने के लिए तड़पती रहती है और बेचैन रहती है। तो लास्ट में क्या होता है क्लास, फाइनली मौत आ जाती है और रूह फाइनली अपने असली घर यानी हेवियन में चली जाती है। तो क्लास ये था हमारा पोएम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इसे समझने की कोशिश करें, इसमें वोकैब जो है वो थोड़ी सी टफ है। Class, I think that from these lines, which are written by the Alexander Pope in Essay on Man, you must learn vividly and clearly. I think that all these lines of the Essay on Man, which I have told you through the slides, I think that you must gain all these lines. So class, and last, I will suggest you that first of all, make the summary of this poem in detail and in a very special way. After that, you have to write the central idea of this poem, which is written by the Alexander Pope. So class, this is your assignment which you have to give me tomorrow or the next day. So it's your first and foremost duty to write the summary as well as the central idea of this poem at your homes and make yourself as a busy. So again, I brought another video for you. Either it will be based on the prose, or either it will be based on the novel, or it can be based upon the poem. So which video I will brought for you tomorrow, it will decide the time. So class, take care of yourself and must do the work which I have given you and must perform the assignment which I have given to you. So thank you very much. क्लास, अब आते हैं असाइनमेंट वर्क पे। सबसे पहले क्लास आपको इसकी समरी बनानी है, अपने वर्ड्स में कॉपी वापी नहीं करनी है, गूगल यूज़ नहीं करना है क्लास, और लास्ट में आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी बताना है और मुझे ये व्हाट्सएप करना है। सो समरी भी बनानी है और सेंट्रल आइडिया भी बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच।